یہ کہانی ان 5 معصوم حسن بے مثال کی حامل شریف گھرانے کی لڑکیوں کی ہے جنہیں ابلیس اپنی پرفریب چال میں پھنسا کر سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور پھر انہیں پر اسرار قوتوں سے مالا مال کر کے شیطانیت کے فروغ کے لیے معاشرے پر مسلط کر دیتا ہے، جہاں وہ تباہی و بربادی کے ایسے باب رقم کرتی ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، اور بالآخر شیطان کے ان شاگردوں کا ٹکراؤ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے سے ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس ایک عظیم روحانی قوت کی مالک پر اسرار عورت کا آنا جانا تھا، اور جس کا تعین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی روح تھی یا زندہ حقیقت۔ اور یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں دلچسپیاں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر شیطان کے چیلوں اور بندگان خدا کے درمیان ایک انوکھی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور چشم تصور کو وہ یادگار مار کے دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے کہانی کے اختتام تک آنکھیں ہٹائے نہیں ہٹتی۔ آپ کے لیے بری خبر ہے، ڈاکٹر بملا کہہ رہی ہیں کہ اب آپ کو ہسپتال سے چھٹی دے دی جائے گی۔ حسینہ نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ کیوں؟ اس نے اچانک یہ فیصلہ کیوں کر لیا؟ اور میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اور یہ خیال ہی وحشت انگیز تھا کہ مجھے ہسپتال سے چھٹی دی جانے والی ہے۔ اجنبی جگہ، اجنبی لوگ، اور اپنے آپ سے میں اجنبی، اور میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ چاند مر چکا ہے، اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے سے پہلے وہ جس آخری انسان سے ملا تھا وہ آپ ہیں۔ اور حسینہ نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ میری ملاقات کو اس کی موت سے کیا تعلق؟ اور میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے حسینہ کی طرف دیکھا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتی، بس وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ آخری شخصیت ہیں جس سے چاند ملا تھا، اور میں جا رہی ہوں۔ اور حسینہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ میرا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ مجھ سے ملنے کے بعد چاند اگر مر گیا تھا یا اگر اسے کسی نے ہلاک کر دیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور میں اپنی الجھن پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈاکٹر بملا کا انتظار کرنے لگی، اور ڈاکٹر بملا تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آئی تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ مجھے یہاں سے چھٹی دی جا رہی ہے؟ اور میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں عالیہ، ہمیں دوسرے مریضوں کے لیے بیڈ کی ضرورت ہے۔ اب تمہیں کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے، صرف یادداشت کھوئی ہے، اور اس کے علاج کے لیے ضروری نہیں کہ ہسپتال میں رہا جائے۔ ایسی صورتحال میں تمہیں ہسپتال چھوڑنے پر مجبور کرتے مجھے افسوس ہو رہا ہے، مگر میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم اگر چاہو تو قصبے کے گیسٹ ہاؤس میں تمہارا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ بہادر بھی وہیں رہائش پذیر ہے، بملا نے کہا، اور ایک اجنبی کے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں؟ اور میں زیر لب بڑبڑائی۔ پھر ڈاکٹر بملا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ مجھے ہسپتال سے نکالنے کی وجہ وہ نہیں جو تم نے بتائی ہے۔ حسینہ سے معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگ مجھ پر کسی قسم کا شبہ کر رہے ہیں۔ ریلوے افیسر چاند اپنی موت سے کچھ دیر پہلے مجھ سے مل کر گیا تھا، اور اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا جا رہا ہے، گویا میں کسی شیطانی قوت کے زیر اثر ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں عالیہ، اور ہمیں واقعی دوسری مریضوں کے لیے بیڈ کی ضرورت ہے۔ اور ڈاکٹر بملا نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ چاند کی موت کیسے واقع ہوئی؟ اسے قتل کیا گیا یا کوئی حادثہ؟ اور میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی موت کی وجہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی لاش تقریباً 1 میل دور ریگستان میں کھڑی اس کے جیپ کے قریب کھڑی پائی گئی، اور جس پر زخموں کے لاتعداد نشان تھے، اور زبان بھی کٹی ہوئی تھی۔ آس پاس صرف اس کی جیپ کے پہیوں کے علاوہ اور کسی چیز کے نشان نہیں ملے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اسے کسی نے قتل کیا ہوگا، اور اسی وجہ سے اس کی موت کو پر اسرار قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کا مجھے قاتل کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ کیونکہ آخری مرتبہ وہ مجھ سے مل کر گیا تھا، اور میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ ڈاکٹر بملا نظریں جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ چند لمحوں بعد میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اپنا سامان تیار کر لو، اور میں کچھ دیر کے بعد کسی کو تمہارے پاس بھیج دوں گی جو تمہیں گیسٹ ہاؤس میں پہنچا دے گا۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ہی ڈاکٹر بملا رخصت ہو گئی۔ ڈاکٹر بملا کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر الجھ گئی، اور حسینہ مجھے ہندوؤں کی اوہام پرستی کے بارے میں تھوڑا بہت بتا چکی تھی۔ یہ لوگ مجھے کسی پر اسرار شیطانی قوت کے زیر اثر سمجھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ یہاں میری موجودگی کو بھی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن میں یہ قصہ اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتی، میں یہ قصبہ اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتی تھی جب تک میری یادداشت عود کرنا آئے، اور میرے لیے یادداشت کا بحال ہونا بہت ضروری تھا کہ آخر میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور یہاں کس طرح پہنچی۔
ज़हन पर बोझ डालने से मेरा सर दुखने लगा और मैं किसी खातिर ख्वाह नतीजे पर ना पहुंच सकी। ये कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक लंबी सड़क और उससे मुल्हिक चंद गलियां जिनमें जाब जा कीचड़ फैला हुआ था, और कस्बे के ऐन वस्त में एक छोटा सा मंदिर, उससे मुतसिल एक प्राइमरी स्कूल और चंद दुकानें जहां देहातों की ज़रूरत की हर चीज़ दस्तयाब थी। बेशतर मकान कच्चे थे, अलबत्ता चंद एक सुर्ख ईंटों की पुख्ता इमारतें भी नजर आईं। कस्बे के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। कसम परसी सी बिना पर मस्जिद की हालत खासी अबतर हो गई थी। मीनार टूट फूट गए और सुर्ख ईंटों की दीवारें भी जगह जगह से शिकस्ता हो रही थीं। सहन में खुद रू झाड़ियां की बहताब थी और चार दीवारी की ईंटें लोग अपने घरों की तामीर में इस्तेमाल कर चुके थे। ईंटों की बजाय अब वहां बांस के बेतरतीब पौधों की चार दीवारी थी और मस्जिद के मोहराबी दरवाजे भी टूट चुके थे। बरामदे में खपड़ेल की छत थी और मस्जिद से मुल्हिक वो छोटी सी इमारत थी जिसे गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बल्कि यह कहना दुरुस्त होगा कि मस्जिद ही के दरअसल कस्बे का गेस्ट हाउस था। वो हिस्सा जो अब बहादुर के तसर्रुफ में था, किसी ज़माने में मस्जिद के पेशे इमाम का हुजरा था, और यह हिस्सा सिर्फ एक ही कमरे पर मुश्तमिल था। जब मैं हसीना के साथ वहां पहुंची तो बहादुर मेरे इस्तकबाल को मौजूद था। कमरे में एक पुराने तर्ज की मसहरी बिछी हुई थी और एक छोटी सी लाइटिंग टेबल और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी मौजूद थी। अंदरूनी हिस्से में उसी से मुल्हिक एक छोटा सा कमरा, और जिसे शायद बेक वक्त किचन और गुस्ल खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये छोटा सा कमरा इतना कुशादा था कि उसमें एक चारपाई भी बिछाई जा सकती, और बड़े कमरे की खिड़की से धूप की किरणें कमरे की वस्त में पहुंच रही थी। लाइटिंग टेबल पर पुराने से टाइपराइटर के अलावा कुछ और चीज़ें भी बिखरी हुई थी, और मेज़ के ऊपर दीवारों पर उसका तफसीली नक्शा आवीज़ा था जिस पर मुख्तलिफ जगहों पर सुर्ख पेंसिल के निशानात लगे हुए थे। तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा मशवरा है कि जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती यही रहो, और रिहाइश गाह के लिए तुम ये कमरा इस्तेमाल कर सकती हो, और मैं मस्जिद में सो जा करूँगा। अब तुम आराम करो और मैं कुछ देर के बाद आऊँगा। अगर मुँह हाथ धोना चाहो तो किचन में पानी और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। बहादुर खामोश होकर चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा और फिर बाहर निकल गया। मैं अजीब सी थकन महसूस कर रही थी और बहादुर के जाते ही बिस्तर पर लेट गई और अपने ज़हन को मुकम्मल आज़ाद छोड़ दिया। मैं अजीब सी कैफियत में थी और इस कस्बे की कुल आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। बहादुर वाहिद मुसलमान था और वो तकरीबन 35 साल का कवजी और तवाना आदमी था। मुसलमान होने के नाते अगरचा मुझे उससे कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की चमक मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी, और दफतन मेरे ज़हन को एक हल्का सा झटका लगा। गहरी तारीकी की बजाय अब धुंध सी महसूस हो रही थी, और उस धुंध में एक ह्योला सा उभरा। पगड़ी के नीचे बिल्ली की तरह चमकती हुई दो आंखें और दो हाथ जो किसी सूट केस का ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे, और चेहरे के नकूश वाज़े नहीं थे। लेकिन वो कौन था? और मेरा ज़हन इस ह्योले को वाज़े करने की कोशिश कर रहा था कि अपने बाजू पर किसी के हाथ का लमस महसूस करके मैं उछल पड़ी, और वो हसीना थी जो सामान रखने के बाद चली गई थी और ना जाने किस वक्त वापस आई। ओ हसीना, क्या बात है? और मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बाहर एक आदमी आपसे मिलना चाहता है और उसका ताल्लुक पुलिस से है। और हसीना ने खौफजदा लहजे में कहा, पुलिस? और मैं चौंक सी गई और फिर उठकर बाहर आ गई। हसीना भी मेरे साथ थी, लेकिन दरवाजे से निकलते ही दूसरी तरफ मुड़ गई। मस्जिद के सामने एक जीप खड़ी थी और एक दराज कामत आदमी जीप से टेक लगाए खड़ा उस तरफ देख रहा था। उसके जिस्म पर खाकी निकर और आधी ऑप्शन की मलेशिया रंग की कमीज थी और सर पर भारतीय पुलिस की मखसूस पगड़ी और जिसके ऊपर एक तरफ झालर लगी हुई थी। मेरा नाम गोपाल सिंह है और पुलिस कप्तान हूँ। मैं आपके आराम में मखमल नहीं होना चाहता था, लेकिन चंद बहुत ज़रूरी बातें पूछना थी जिसके लिए आपको जहमत दे रहा हूँ। बेहतर होगा कि हम कमरे में इत्मीनान से बैठकर बातें करें, उस शख्स ने अपना तारफ कराते हुए कहा, और जीप के स्टीयरिंग पर बैठे हुए ड्राइवर को वहीं रुकने का इशारा करके मेरे साथ चल पड़ा। मैं नहीं समझती कि मैं आपको क्या बता सकूंगी। आप मुझे जानते होंगे कि जब मुझ पर हमला हुआ तो उसके बाद से मैं अपनी याददाश्त खो बैठी हूँ, और मुझे तो ये भी याद नहीं कि हमलावर कौन था। मैंने कहा, मैं उस हादसे के बारे में नहीं, चांद नामी उस शख्स के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ जो आज सुबह आपसे मिला था, और आपसे मुलाकात से कुछ ही देर के बाद उसे रेगिस्तान में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया।
लेकिन मैं उसे कतई नहीं जानती। वो मुझसे मिलने के लिए अस्पताल आया था और किसी संदूक की शिनाख्त के सिलसिले में मुझे रेलवे स्टेशन से ले जाना चाहता था और मैंने हकलाते हुए कहा। किसी अनजाने खौफ की लहर मेरे पूरे बदन में सरायत कर गई। रेलवे स्टेशन पर कोई ऐसा संदूक नहीं जिसकी शिनाख्त कराना मतलूब हो, और आपका एक बैग गुम हुआ है जो अब तक दस्तयाब नहीं हो सका। किसी संदूक के बारे में उसने आपसे झूठ कहा था और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपसे उसकी क्या बातचीत हुई, गोपाल सिंह बोला। मैं दीवार का सहारा लेकर मेज के किनारे बैठ गई और मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। चंद लम्हों के लिए अपने बेरबत तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करती रही और फिर उसे बताने लगी कि मेरी चांद से क्या गुफ्तगू हुई। मैंने उसे ये बताया कि चांद ने दोबारा आने के लिए भी कहा था। कैप्टन गोपाल सिंह डायरी पर नोट करता रहा और मेरे खामोश होने पर उसने डायरी जेब में रख ली। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब कुछ क्या है? और मैंने मर्तश लहजे में कहा और मेज पर पड़ा हुआ दस्ती पंखा उठाकर जलने लगी। जरूर, गोपाल सिंह मेरी तरफ देखते हुए बोला। उसका असल नाम बुहारी लाल था और आमतौर पर उसे चांद कहा जाता था। अगरचे उसके पास जाली कागजात मौजूद थे, लेकिन रेल के महकमे से उसका कोई ताल्लुक नहीं। उसकी जीप का रजिस्ट्रेशन नंबर भी जाली था और दरअसल वो कलकत्ता का एक जेल साज था। उसकी मुजरमाना सरगर्मियां खासी वसी थी और वह एक संजीम जुर्म के सिलसिले में पुलिस को मतलूब था, लेकिन अचानक ही गायब हो गया और वो आपका ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। इसका मतलब है कि आपकी हस्ती उसके लिए बहुत अहम थी। वो मर चुका है और आपको कुछ याद नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उसके लिए इतनी अहम क्यों थी कि वह अपना शहर छोड़कर आपके ताक़ुब में यहाँ तक चला आया। मैं कुछ नहीं जब नहीं जानती, मैं क्या बता सकती हूँ, और मैंने बेबसी के अंदाज में जवाब दिया। प्लीज कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं चाहता कि हमें आपकी लाश भी चांद की तरह रेगिस्तान में पड़ी हुई मिले। और गोपाल सिंह ने अजीब से लहजे में कहा। मैं थर्रा उठी और इससे पहले कोई जवाब देती बहादुर कमरे में दाखिल हुआ और उसने कैप्टन गोपाल सिंह से जिस अंदाज में हाथ मिलाया था उससे ज़ाहिर होता था कि वे एक दूसरे के शिनासा थे। हेलो गोपाल सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बहादुर ने उसे घूरा। मैं इन खातून से चंद जरूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बकौल इनके उन्हें कुछ भी याद नहीं। ये दुरुस्त है, मिस आलिया की याददाश्त खो चुकी है, बहादुर ने जवाब दिया। बहरहाल मैं फिर आऊंगा। खातून, बेहतर होगा कि आप जल्द अज जल्द अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करें। और गोपाल सिंह ने कहते हुए इस अंदाज में मेरी तरफ देखा जैसे उसे शुबा हो कि मैं याददाश्त खोने का महज ढोंग रचा रही हूँ। मैंने दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखाने को तुम्हारे बारे में टेलीग्राम दिया था और आज उसका जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही यहाँ अपना कोई तहकीकी नुमाइंदा भेजेंगे और इस दौरान तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, बहादुर ने कैप्टन गोपाल के जाने के बाद कहा। मैं कुछ कहना चाहती थी कि हसीना खाने की ट्रे उठाए हुए कमरे में दाखिल हुई और बातों में हमें उसका एहसास ही नहीं रहा कि शाम हो चुकी है। हसीना ने ट्रे मेज पर रख दी, बत्ती जला दी और हम दोनों खाना खाने लगे। बहादुर खाने के बाद मुझे सैर के लिए ले जाना चाहता था और खाना खत्म करके उसने मुझे तैयार होने को कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं कैप्टन गोपाल सिंह की बातों पर गौर करने लगी। उसने बताया था कि चांद जुर्म पेशा आदमी था, लेकिन एक जुर्म पेशा आदमी को किसी गैर मुल्की लड़की से क्या दिलचस्पी हो सकती थी और मेरे पीछे क्यों लगा था, और वो कौन लोग थे जिन्होंने ट्रेन में मुझ पर हमला किया था। डॉक्टर बिमला और गोपाल सिंह के बकौल हमला आवर मेरा एक बैग ले गए थे और उस बैग में क्या था मुझे उसका कोई इल्म नहीं। अलबत्ता तकरीबन 2000 रुपए की रकम, चंद छोटे छोटे तलाई जेवरात मेरे उस बैग में मौजूद थे जो मेरे पास था। और हमला आवरों को अगर रकम या जेवरात से कोई दिलचस्पी ना थी तो उन्हें किस चीज की तलाश थी, और क्या बहादुर लाल या चांद भी उसी चीज के हसूल के लिए मेरे ताक़ुब में आया था। अब मुझे अपने सूटकेस और बैग की चीजों का जायजा भी लेना था और हसीना मेरे पास ही मौजूद थी। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन सी चीज है जिसके हसूल के लिए ये लोग इस कदर बेचैन हो रहे हैं। और एक आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े थे, लेकिन मेरी नजरों में कोई ऐसी चीज ना आ सकी और मैं तमाम चीजें निकाल निकाल कर बाहर रखती जा रही थी। और हसीना एक छोटा सा गुलदान उठाकर देखने लगी। रंगीन शीशों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया ये गुलदान 4 इंच ऊंचा था और उसका मुहीत 2 इंच के करीब। उस तवील सफर के दौरान ये गुलदान मैंने कहाँ से लिया था मुझे कुछ याद नहीं। कितना प्यारा है ये शीशों का नन्हा सा गुलदान। और हसीना उसे बगौर देखते हुए बोली, अच्छा लगा तुम्हें? चलो मेरी तरफ से तुम तोहफा समझ कर रख लो। मैंने मुस्कुराकर कहा और हसीना का चेहरा दमक उठा। उसने उसी वक्त गुलदान को कमीज में छुपा लिया और बर्तन उठाकर चली गई।
पूरे सामान की तलाशी के बाद भी मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकी जो इस मसले पर रोशनी डाल सकती, और मैं तमाम चीजें संभाल कर बाहर निकल आई। बहादुर मस्जिद के बरामदे में मेरा मुंतजिर था और हम दोनों जैसे ही बांसों के बाड़ से बाहर निकले, बाहर मौजूद एक पुलिस वाले ने हमें रोक लिया। मिस साहबा बाहर नहीं जा सकती जनाब, उसने मौतबाना लहजे में कहा। क्यों? और बहादुर के मुंह से हल्की सी गुर्राहट निकली। कप्तान साहब का हुक्म है कि मिस साहबा की हिफाजत की जाए और मेरी ड्यूटी इसी मकसद के लिए यहाँ लगाई गई है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। इन्हें जरा कस्बे के बाजार तक जाना है, अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ चढ़ सकते हो, और बहादुर ने उसकी बात का मतलब समझते हुए कहा। और कांस्टेबल चंद लम्हे कुछ सोचता रहा और फिर उसने आमादगी का इजहार कर दिया और हमसे 2 कदम पीछे पीछे चलने लगा। हमारी वापसी तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हुई और कांस्टेबल तो बाहर ही रुक गया और बहादुर मस्जिद वाले कमरे में चला गया, जहां उसने फर्श पर ही बिस्तर लगा लिया था। मैं तंग सा बरामदा तय करती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और दरवाजा खोलते ही कुछ अजीब सा एहसास हुआ और दिल में एक अज़राब और बेचैनी थी। और मैं जैसे अंदर दाखिल हुई, दरवाजे के करीब ही किसी चीज से ठोकर लगी और मैंने दीवार पर टटोल कर बिजली का स्विच ऑन कर दिया और कमरे में रोशनी होते ही मेरा दिमाग भग से उड़ गया। कमरे में अजीब अबतरी का समा था और सूटकेस बिस्तर पर खुला पड़ा था, कपड़े और दूसरी चीजें फर्श पर बिखरी हुई थी, और वो बैग गायब था जिसमें मेरा पासपोर्ट और दीगर तमाम जरूरी कागजात मौजूद थे। नकद रकम और जेवरात भी उसी बैग में थे और याददाश्त तो खोई हुई थी। अब मैं इन चीजों से भी हाथ धो बैठी जो कसम पसरी में मेरी महदूद मावन साबित हो सकती थी। मैं चंद दिल में मतवशी निगाहों से ये सब कुछ देखती रही और फिर दरवाजे में आकर बहादुर को आवाज देने लगी। उसने वहां पहुंचने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाया और कमरे की हालत देखकर वो भी चौंक गया। सूरत समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी और वो उलझी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा, गोया उसकी वजह जानना चाहता हो। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं क्या बता सकती थी, और उसके बरअक्स में अपने आप को मुकम्मल तौर पर बेसहारा समझने लगी। एक ऐसी औरत जिसका इस दुनिया में कोई नहीं और जो अपने आप को शिनाख्त नहीं कर सकती। चंद लम्हों तक हम खामोश निगाहों से एक दूसरे को देखते रहे और फिर बहादुर आगे बढ़कर चीजें समेटने लगा और बाहर चगचा कांस्टेबल मौजूद था, लेकिन उससे किसी किस्म की कोई मदद लेना बेकार था। थाना भी रेलवे स्टेशन पर था और अगर किसी किस्म की रिपोर्ट की जाती तो कोई हौसला अफजा नतीजा बरामद होने की कोई तवक्का न थी। इसलिए बहादुर ने मुझे आराम से सो जाने का मशवरा दिया और वह जैसे ही कि दरवाजे की तरफ बढ़ा और मैं जल्दी से बोल उठी। तुम कहाँ जा रहे हो? मस्जिद में सोने के लिए, उसने जवाब दिया। यही सो जाओ, इसी कमरे में, मुझे डर लग रहा है, और मैंने मरतश लहजे में कहा। बहादुर चंद लम्हे उलझी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखता रहा और फिर उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी और बिस्तर की चादर उठाकर दरी पर बिछाते हुए बोला, ठीक है, और तुम बेड पर सो जाओ और मैं नीचे लेट जाता हूँ। बहादुर चादर पर लेटते ही सो गया और मैं पलंग पर लेटी करवटें बदलती रही। अजीब अस्तराबी कफियत थी, लेकिन कमरे में एक मर्द की मौजूदगी से मैं किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी और जिसका इज़हार भी अल्फाज में मुमकिन नहीं था। और फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मुझे डॉक्टर बिमला ने झंझोड़ कर उठाया और मैंने खुमार आलूद निगाह से अतराफ में देखा। मशरक की खिड़की से आने वाली धूप की किरणें फर्श पर मचल रही थी और बहादुर कमरे में मौजूद ना था और वो शायद बहुत सुबह उठ जाने का आदी था। खैरियत डॉक्टर, और क्या बहादुर तुम्हें रात के वाक़े के बारे में बता दिया है? और मैंने खमार आलूद निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस वक्त हसीना के बारे में पूछने आई हूँ। तुमने उसे कहीं देखा तो नहीं? और डॉक्टर बिमला के लहजे में परेशानी का आंसर नुमाया था। गुज़श्ता रात हमें खाना उसी ने लाकर दिया था, मैंने जवाब दिया, और मैं आज की बात कर रही हूँ और वो गुज़श्ता रात से गायब है। गायब है क्या मतलब? और मैं बुरी तरह चौंक गई। डॉक्टर बिमला के लहजे ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरी मर्तबा मुझसे मिली और फिर गायब हो गई? पीपल के नीचे बैठे हुए साधु ने गुज़श्ता रात उसे किसी आदमी के साथ कीकर के दरख्तों के झुंड की तरफ जाते हुए देख लिया था और लिबास से वो आदमी कोई हिंदू लगता था, लेकिन तारीकी के बाद साधु को उसका चेहरा नजर नहीं आ सका और उसके बाद से हसीना को नहीं देखा गया। डॉक्टर बिमला ने मसरूद लहजे में कहा, क्या वो पहले भी बगैर तलाक इस तरह गायब हो जाया करती थी? मैंने लड़ते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। डॉक्टर बिमला ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। मेरी आंखों के सामने चांद की मौत का मंजर घूमने लगा और वो भी मुझसे मुलाकात के चंद घंटे बाद ही मौत के घाट उतार दिया गया था। कहीं हसीना भी तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हसीना के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि वो जुराइम पेशा अफराद की आलाकार होगी। उसे तो शायद जुर्म का मफहूम भी मालूम नहीं। और मैं जब यहाँ आई थी
तो वो मुझसे मानूस हो गई और उसे यकीन उन लोगों ने अगवा किया होगा जो मुझसे कुछ चाहते थे और वो हसीना के जरिए दबाव डालकर मुझसे अपना मकसद पूरा करना चाहते होंगे। क्या उसे रेगिस्तान की तरफ तलाश किया गया है? मेरा मतलब है कि किसी अनजाने खौफ के तहत, और मैं अपना जुमला पूरा न कर सकी। मैं तुम्हारा मतलब समझती हूँ। और डॉक्टर बिमला ने कुछ लहजे में कहा, जहाँ 2-3 रोज से कुछ पुरअसरार वाकयात रूनुमा होने लगे हैं। और क्या मेरा उन पुरअसरार वाकयात से कोई ताल्लुक हो सकता है? मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। सूरत खासी पचीदा है और बहादुर की आवाज सुनकर मैं दरवाजे की तरफ घूम गई। वो ना जाने कब से वहां खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। वो कह रहा था कि यहाँ के लोग समझते हैं कि इन पुरअसरार वाकयात के जिम्मेदार तुम हो। मैं एक बार फिर सोच में खो गई और मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 2 रोज हुए थे और इस अरसे में एक आदमी पुरअसरार तरीके से हलाक हो गया और एक नौजवान लड़की लापता हो गई। बदकिस्मती से वो दोनों आखिरी मर्तबा मुझसे मिले और लोगों के ख्याल में मैं किसी पुरअसरार शैतानी कुव्वत के ज़ेर असर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उनका यकीन पुख्ता होता गया कि इन पुरअसरार वाकयात का तल्लुक मुझसे है और मुझे ही कसूरवार समझ रहे थे। अस्पताल में एक आदमी आया है जो तुमसे मिलना चाहता है और वो अगरचे हिंदू है, लेकिन उसकी बातों से ज़ाहिर होता है कि वह तुम्हारे शोहर और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। रामदास मल्होत्रा का शुमार बम्बई के अमीर तरीन आदमियों में होता है और वह अस्पताल के सामने वाले मैदान में खैमादन है। अगर तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो। डॉक्टर बिमला ने चुभती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर वो मेरे बारे में जानता है तो यकीनन मेरी मदद कर सकता है और मैं उससे जरूर मिलूंगी। मैं जल्दी से बोली, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कैप्टन गोपाल सिंह की वापसी का इंतजार कर लेना चाहिए और वह हसीना की तलाश में रेगिस्तान की तरफ गया हुआ है। मैं उसकी मौजूदगी जरूरी नहीं समझती और मैंने बहादुर को घूरा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने कहा और बहादुर ने अपने तौर पर मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी का बोझ उठा लिया और मुझे भी उसमें कोई एतराज नहीं था और एक इत्मीनान था कि हालात में मेरा कोई हमदर्द भी मौजूद है। कुछ देर के बाद हम दोनों गेस्ट हाउस से निकले और उसकी जीप में सवार होकर उस मकाम की तरफ चल दिए जहां डॉक्टर बिमला के कहने के मुताबिक रामदास मल्होत्रा खैमा जन था। अस्पताल के सामने एक वसी मैदान में शानदार खैमे नस्ब थे और उन खैमों को देखकर यह ख्याल होता था जैसे कोई महाराजा यहाँ पड़ाव डाले हुए हो। 3 छोटे खैमे थे और एक बड़ा, और जो बाहर से ही खूबसूरत नजर आ रहा था। बड़े खैमे के करीब एक शामियाना लगा हुआ था जिसके नीचे 3-4 आरामदाह कुर्सियां बिछी हुई थीं। शामियाने के बांस पर निस्ब एक छोटी सी चरखी से कपड़े का एक बहुत बड़ा पंखा लटका हुआ था और चरखी में से गुजरने वाला रस्सी का दूसरा सिरा एक आदमी के हाथ में था और जिसे वो जोर जोर से आगे पीछे खींच रहा था। उसकी अमर से पंखा मुतहरक था और शामियाने के करीबी एक बहुत बड़ा ट्रक और एक लैंड क्रूजर खड़ी थी। ट्रक में एक छोटा सा जनरेटर भी नस्ब था और जिससे जरूरत के वक्त बिजली पैदा की जा सकती। लैंड क्रूजर में भी एयर कंडीशन था और कुर्सियों के करीब एक मेज थी जिसके साथ ही एक आइस बॉक्स में मौजूद था जिसमें कोका कोला की बोतलें भरी हुई थी और वस्ती कुर्सी पर एक 1.5 उम्र शख्स पुरतमक्कनत अंदाज में विराजमान था। उसके बाएं हाथ में एक मोटा सा सिगार था और कीमती लिबास के साथ उसका बारूब चेहरा और आंखों की चमक उसकी शख्सियत में बड़ा पुरअसरार सा तासर पैदा कर रही थी। और उसके करीब ही 2 आदमी मुतवाना अंदाज में खड़े थे और वह दोनों भी हिंदू ही थे। हमारी जीप शामियाने से चंद कदम के फासले पर रुक गई और मैं डॉक्टर बिमला और बहादुर के साथ नीचे उतर आई। डॉक्टर बिमला ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए बता दिया कि वही रामदास मल्होत्रा है जो मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद था। अगरचे उसने अपने आप को मेरा शनासा बताया था, लेकिन वह मेरे लिए कतई अजनबी था और उसने आगे बढ़कर हमारा इस्तकबाल किया। मुझे अफसोस है आलिया खातून, तुम जिन हालात से 2-4 हो वो मेरे लिए भी परेशानी का बायस है। मैं इस वक्त बम्बई में था जब तुम्हारे साथ पेश आने वाले हादसे की खबर अखबार में पड़ी और यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि चोर गुज़श्ता रात तुम्हारा सब कुछ ले उड़े। और मल्होत्रा ने तासफ का इज़हार किया। ये हालात मेरे लिए खासी परेशान कुन है और मैं कुछ नहीं समझ पा रही कि क्या करूं। यहाँ डॉक्टर बिमला और मिस्टर बहादुर का मुझे बड़ा सहारा है, मैंने जवाब दिया। अगर तुम्हारी याददाश्त बरकरार रहती तो तुम मुझे फौरन पहचान लेती और मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कराची में गुजरा है। तुम्हारे शोहर नदीम आरफ मेरे बेहतरीन दोस्तों में था और उस वक्त तुम्हारी मदद करना मैं अपना अखलाकी फर्ज समझता हूँ और यहाँ मेरी आमद का मकसद भी यही है। वैसे क्या तुम्हें याद है कि हम तकरीबन 1 माह पहले बर्मा में मिले थे? मल्होत्रा ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, बर्मा में? और मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। मुझे याद नहीं, कुछ भी याद नहीं।
मेरा ख्याल है कि अगर तुम कोशिश करो तो तुम्हें सब कुछ याद आ सकता है। मल्होत्रा की नजरों में अजीब सी चुभन थी। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो गया तुम मुकम्मल तौर पर अपनी याददाश्त खो चुकी हो। मल्होत्रा की निगाहों में तशकीक की झलक नुमायां थी। डॉक्टर बिमला का ख्याल है कि आलिया को आराम और सुकून की जरूरत है। दिमाग पर गैर जरूरी बोझ उनके लिए नुकसानदाह साबित हो सकता है, बहादुर ने मुदाखलत करते हुए कहा। इस इतला का शुक्रिया। और मल्होत्रा ने बहादुर को घूरा, और वह शुरू ही से मेरे साथ उसकी मौजूदगी को पसंद नहीं कर रहा था। तेज धूप भी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। और इस मत पर डॉक्टर बिमला ने कहा, मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अगर आप दोनों चाहें तो वापस जा सकते हैं। आलिया खातून दोपहर का खाना मेरे साथ खाएंगी। मेरा खेमा एयर कंडीशनड है और इन्हें गर्मी का एहसास तक नहीं होगा, मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। आलिया मेरे ज़ैर इलाज है और मैं से ऐसा मशवरा नहीं दूंगी। और अब हमें वापस चलना चाहिए। क्यों आलिया? और डॉक्टर बिमला ने मेरी तरफ देखा। हाँ चलो। और मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। रामदास मल्होत्रा अगरचे अपने आप को मेरा पुराना शिनासा ज़ाहिर कर रहा था और किसी ऐसे शख्स की मौजूदगी मेरे लिए इत्मीनान का बायस हो सकती थी, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि वो मुझे कतई पसंद नहीं आया और यहाँ खड़े खड़े मेरा दिल घबराने लगा था। तो ठीक है, शाम को मैं गेस्ट हाउस में आऊंगा और मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम है जो हो सकता है तुम्हारी याददाश्त लौटाने में मददगार साबित हों। रामदास मल्होत्रा ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा और हमें जीप तक छोड़ने के लिए आया। डॉक्टर बिमला को अस्पताल उतारने के बाद मैं और बहादुर गेस्ट हाउस में पहुंच गए और बहादुर ने इस मौजू पर मुझसे कोई बात नहीं की और वो अपने काम में मसरूफ रहा। मैं दिन भर बिस्तर पर लेटी मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में सोचती रही और बहादुर लाल चांद का कत्ल और फिर हसीना की गुमशुदगी, एक अजीब सी फिजा पैदा हो गई थी और रामदास मल्होत्रा की आमद ने मुझे एक और उलझन में मुब्तला कर दिया। वो अपने आप को मेरे शोहर का दोस्त बता रहा था और एक माह पहले बर्मा में मुझसे मुलाकात का मुद्दई भी था और मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं था। लेकिन रामदास मल्होत्रा का रहन सहन और ठाठ बता रहा था कि वो करोड़पति नहीं तो लखपति जरूर है और उसकी शान शौकत किसी महाराजा से कम नहीं थी। उसका कैंप तो यही ज़ाहिर कर रहा था और मैं ये सोचे बगैर नहीं रह सकी कि उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई होगी और उसकी आमदनी का जरिया क्या था। शाम के साए ढल चुके थे जब गेस्ट हाउस के सामने मल्होत्रा की लैंड क्रूजर आकर रुकी और मैं उस वक्त बहादुर के साथ गेस्ट हाउस के सेन में बैठी थी और मल्होत्रा का ड्राइविंग स्टीयरिंग पर ही बैठा था। दूसरे मुलाजिम ने नीचे उतरकर दरवाजा खोला और मल्होत्रा गाड़ी से बरामद होकर पुरवकार अंदाज में चलता हुआ हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम दोनों ने उठकर उसका इस्तकबाल किया और बैठने के लिए तीसरी कुर्सी की तरफ इशारा किया जो बाकी दोनों कुर्सियों की तरह खासा शिकस्ता हालत में थी। मिस्टर बहादुर, अगर आप इजाजत दें तो मैं तन्हाई में आलिया खातून से कुछ बातें करना चाहता हूँ। और मल्होत्रा ने चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद बहादुर की तरफ देखते हुए कहा। बहादुर ने मेरी तरफ देखा और फिर मेरी रजामंदी पाकर वहां से उठ गया। उसके जाने के बाद मल्होत्रा कई लम्हों तक गहरी निगाहों से मेरे चेहरे का जायजा जीता रहा और फिर कदरे आगे झुककर कहने लगा, मिस आलिया, अब तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि तकरीबन 1 माह पहले बर्मा में हमारी मुलाकात हुई थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं और मादी की कोई भी बात मेरे ज़हन में महफूज नहीं रही। मेरा ख्याल है कि तुम्हें इतना तो ज़रूर याद होगा कि बर्मा की मुलाकात के दौरान हम एक बहुत अहम मामला तय हुआ था और मैंने तुम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया था। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, गोया उसे शुबा था कि मैं याददाश्त खो जाने का ढोंग रचा रही हूँ। एतमाद मामला मैं बिल्कुल नहीं समझ सकी और मैं उसकी बातों से उलझन महसूस करने लगी। अब मुझे खुलकर बात करना होगी। उसने मुहतात निगाहों से चारों तरफ देखा और मजीद आगे को झुकते हुए राजदाना लहजे में कहने लगी, ये दुरुस्त है कि हिंदुस्तान की तकसीम से पहले तुम्हारे शोहर से मेरे दोस्ताना तल्लुकात थे और उससे आखिरी मुलाकात तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह के मौके पर हुई थी। मैं इन दिनों अपने कारोबारी सिलसिले में कराची गया हुआ था और फिर 8 से तकरीबन 1 माह पहले तुमसे बर्मा में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तुमने बताया था कि तुम्हारे शोहर का इंतकाल हो चुका है और तुम इन दोनों मुख्तलिफ ममालिक की सैर सियाहत करते हुए सखम और हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान वापस जा रही हो और मैं बर्मा से कुछ हीरे हिंदुस्तान में स्मगल करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों की नज़रों में आ जाने के बाद खुद ये काम नहीं कर सकता था और तुम्हें देखकर मेरे दिल में अचानक यह ख्याल उभरा कि क्यों ना तुमसे यह काम लिया जाए। और तुमने 1 करोड़ रुपए की मालियत के हीरों की स्मगलिंग को एक दिलचस्प एडवेंचर समझते हुए कबूल किया था और हमने ये तय पाया था कि जिस रोज़ तुम बर्मा से रवाना होगी मेरा एक आदमी तुम्हें हीरे पहुंचा देगा।
प्रोग्राम के मुताबिक आज से 3 दिन पहले तुम्हें बम्बई के अशोका होटल में हीरे मेरे हवाले करने थे, लेकिन तुम वहां नहीं पहुंची तो मैं परेशान हो गया। मेरा ख्याल था कि शायद तुम्हारी नीयत बदल गई हो और तुम मेरे हीरे हजम करना चाहती हो। मैं नहीं समझ सकी कि तुम क्या कह रहे हो, और आज से पहले ना मैंने तुम्हें कभी देखा है और ना मुझे कोई ऐसी बात याद है। मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा और मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। मल्होत्रा के कहने के मुताबिक मेरे पास 1 करोड़ रुपए के हीरे थे, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही थी। और फिर अचानक ही मेरे ज़हन में एक धमाका सा हुआ। तुम कहते हो कि मेरे पास ग्रां कदर हीरे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़मीन में कि ट्रेन में मुझ पर हमला महज उसी वजह से किया गया? मैंने कहा यकीनन, और मैं अखबार में ये खबर पढ़कर यहाँ के लिए रवाना हुआ था और मुझे यकीन है कि हमारा राज फाश हो गया था। ट्रेन में तुम्हारा जो बैग चोरी हुआ था उसमें क्या सामान था? मल्होत्रा ने पूछा। मुझे कुछ इल्म नहीं। कल रात तुम्हारा जो बैग चोरी हुआ उसमें क्या था? उसने दोबारा पूछा। पासपोर्ट, डायरी और दीगर ज़रूरी कागजात, और उसमें हीरे किस्म की कोई चीज़ ना थी और ना ही सूट केस में कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी। मैंने जवाब दिया। याद करने की कोशिश करवा लिया और मैं अपनी सारी पूंजी इस दाव पर लगा चुका हूँ। अगर मुझे हीरे वापस ना मिले तो मैं तबाह हो जाऊँगा। और मल्होत्रा ने मेरे चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं जानती। और मैंने बेबसी से सर को झटका। वैसे तुम्हारी ज़हनी कैफियत कब तक दुरुस्त हो जाएगी? उसने मुश्तबा निगाहों से मेरी तरफ देखा। कुछ नहीं कह सकती। डॉक्टर बिमला का ख्याल है कि हो सकता है 2-4 रोज़ में मेरी याददाश्त लौट आए, या उसमें गैर मुआयना अरसा भी लग सकता है। मैंने जवाब दिया। मल्होत्रा ने गहरा सांस भरा। खैर, ये बातें किसी के कहने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर किसी वक्त तुमसे मुलाकात करूँगा और अपने ज़हन पर दबाव डालने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुम्हें कुछ याद आ ही जाए। और वह कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। मल्होत्रा जैसे ही सेन से बाहर निकला और बहादुर तेज कदम उठाता हुआ मेरे पास पहुँच गया। मुझे यकीन था कि वो किसी जगह छुप कर हमारी निगरानी कर रहा था और मैं इस वक्त शदीद उलझन में मुब्तला थी। दिमाग में चूंटियाँ सी रेंग रही थी और बहादुर मेरे चेहरे के तासरा से मेरी कैफियत बाम गया और मुझे सहारा देकर कमरे में ले आया। वो मुझसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी ज़ुबान गंग सी होकर रह गई। बिल आखिर कई मिनट की खामोशी के बाद मैंने उसे आरामदास मल्होत्रा से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बता दिया, और जिसे सुनकर वो बुरी तरह चौंक उठा। सूरत खासी पेचीदा हो गई है और मेरा ख्याल है कि हमें फ़ौरन कैप्टन गोपाल सिंह को इतला देनी चाहिए। और मेरे खामोश होने पर उसने कहा, और मैं कोई जवाब ना दे सकी। बहादुर मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले आया और शाम का अंधेरा फैल चुका था। उसने मुझे जीप में बैठाया और उसे तेज़ रफ्तारी से रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ा दिया। लेकिन हमारी ये भाग दौड़ बेकार साबित हुई और कैप्टन गोपाल सिंह से मुलाकात ना हो सकी। वो किसी केस की तफ्तीश के सिलसिले में कस्बे से बाहर गया हुआ था और वापस आने के बाद बहादुर तकरीबन 1 घंटे तक मेरे कमरे में बैठा रहा और फिर उठकर मस्जिद वाले कमरे में चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गई और मेरा दिमाग बुरी तरह टकरा रहा था और दफतन मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा। सूरत ना सिर्फ खासी पेचीदा बल्कि मेरे लिए इंतहाई संगीन थी। अगर पुलिस को पता चल गया कि मैं हीरो की स्मगलिंग में मुलव्वस हूँ तो मेरा ठिकाना जेल के अलावा और कोई ना होगा। और इस तसव्वुर से ही मैं सरतापा लर्ज़ उठी और मेरे लिए बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता था, फरार। मैंने उठकर एक छोटे से शोल्डर बैग में अपनी चंद ज़रूरी चीज़ें भर ली और मुनासिब वक़्त का इंतज़ार करने लगी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और जब मुझे यकीन हो गया कि सब लोग सो रहे हों तो मैंने बैग उठाया और खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर आ गई। मैं सामने वाले रुख से बाहर निकलने का ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी, क्योंकि मस्जिद के बरामदे से होकर गुजरना पड़ता और उस तरह मैं बहादुर की नज़रों में आ सकती थी। मज़ीद बरां गेस्ट हाउस के गेट नुमा रास्ते पर कैप्टन गोपाल सिंह का मुतय्यन करदा कांस्टेबल भी मौजूद था और वो दोनों अगरचा सो रहे थे, लेकिन कदमों की आहट से उनमें से किसी की आँख खुल सकती थी। गेस्ट हाउस की अकबी दीवार तकरीबन 8 फुट ऊंची थी, लेकिन जगह जगह से ईंटें टूटी हुई होने की वजह से उस दीवार पर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने बैग दांतों में पकड़ लिया और दीवार की टूटी हुई जगहों पर पैर फंसाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगी। मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था और अनजाने से खौफ के तहत जिस्म के मसामों से पसीना फूट निकला और दीवार के ऊपर पहुंचकर मैंने बैग दूसरी तरफ फेंक दिया और चंद लम्हों बाद खुद में छलांग लगा दी और नीचे गिरते हुए मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और जिसकी वजह से मेरे टखने में हल्का सा झटका आ गया। नीचे गिरते हुए मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और जिसकी वजह से दर्द की शिद्दत से मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैं चंद लम्हों तक टखना सहलाती रही और जब दर्द किसी हद तक कम हुआ तो बैग उठाकर लंगड़ाती हुई एक तरफ को चल दी।
गली से निकलकर मैं कब्जे के मेन रोड पर पहुंच गई और जहां कुत्तों ने भौंक कर मेरा इस्तकबाल किया और मैं जल्दी से एक और गली में घुस गई और दोबारा मेन रोड पर आने की बजाय गलियों ही गलियों में चलती रही। मेरे सामने किसी मंजिल का निशान न था और अनजान रास्तों पर तेज कदम उठाती हुई ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करने की कोशिश कर रही थी। मकसद यही था कि जल्द से जल्द कस्बे से दूर निकल जाऊं और एक गली के आखिरी मोड़ पर पहुंची तो सामने अस्पताल की इमारत देखकर ठटक गई और इसके सामने ही रामराज मल्होत्रा का कैंप था। मैं चंद लम्हे गली के मोड़ पर खड़ी रही और फिर वापस मुड़ना ही चाहती थी कि अचानक मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाच उठी और सर पर लगने वाली सर्द इतनी शदीद थी कि मैं अपने हवास पर काबू न रख सकी। मैं लहराती हुई नीचे गिरने लगी और उसके साथ ही मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। जहां मेरी आंख खुली उसे बाकायदा कमरा नहीं कहा जा सकता था। तकरीबन 12 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा और एक पहाड़ी गार था। गैर हमवार दीवारें और झुकी हुई छत पर मेरे उस ख्याल की तस्दीक कर रही थी कि छत इस कदर नीची थी कि कदरे लंबे कद के आदमी का सर छत को छू सकता था और कमरे में फर्नीचर नाम की सिर्फ एक साल खुर्दा सी कुर्सी पड़ी हुई थी और उसके अलावा लकड़ी की चंद टूटी हुई चीज़ें भी बिखरी हुई थीं। एक तरफ से दीवार के करीब पत्थर का एक चबूतरा था और जिस पर टीन का बना हुआ एक चिराग जल रहा था। चिराग में तेल की बजाय शायद किसी किस्म की चर्बी इस्तेमाल की जा रही थी क्योंकि गाढ़े धुएं के साथ ही कमरे में एक नागवार सी बू फैली हुई थी। मेरे करीबी गदले से पानी का भरा हुआ एक जग रखा हुआ था और मेरी एक कलाई एक आहनी कड़े में जकड़ी हुई थी जिससे मुंसलिक जंजीर का दूसरा सरसिरा दीवार में लगे हुए एक चक में फंसा हुआ था। चंद लम्हों तक मैं कुछ न समझ सकी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता सूरत हाल वाज़ेह होने लगी और रात को अस्पताल के करीब मेरे सर की पुश्त पर ज़रब लगाकर मुझे बेहोश किया गया था और अब मैं एक कैदी थी। लेकिन मुझे कैद करने वाले कौन थे और इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैं चंद लम्हे उसी हालत में बैठी रही और फिर उठकर उस कैद खाने का जायजा लेने लगी। जंजीर खासी लंबी थी और मैं इस हद तक आगे बढ़ती रही जहां तक जंजीर इजाज़त दे रही थी और ये कमरा शायद उससे पहले भी कैद खाने ही के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा होगा क्योंकि एक तरफ कपड़ों के चंद चीथड़े और गुलाजत का ढेर नज़र आ रहा था और जिससे शदीद तफन उठ रहा था। मैं दूसरी तरफ घूमना ही चाहती थी कि उसका कोने में कोई चीज़ चमकती हुई देख कर रुक गई और मैंने चबूतरे पर रखा हुआ चिराग उठा लिया और आगे बढ़ गई। दूसरे ही लम्हे मेरे दिल उछल कर हल्क में आ गया और रोशनी में चमकने वाली चीज़ मेरी धूप का वो चश्मा था जो पहले रोज़ मैंने अस्पताल में हसीना को दिया था और उसका एक शीशा चकनाचूर और फ्रेश फ्रेम दरमियान से टूटा हुआ था। और मेरे लिए खौफजदा होने की बात यह थी कि मेरा ये टूटा हुआ चश्मा एक इंसानी हाथ के गिरफ्त में था और जिसका बाकी जिस्म दीवार की आड़ में था। मैं कुछ और आगे बढ़ी तो सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। वो हसीना थी और दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन चंद लम्हों के बाद जब आंखें खोली तो वो हकीकत जो कि तू मेरे सामने मौजूद थी। हसीना का मुर्दा जिस्म आड़ी तिरछी हालत में पड़ा हुआ था और उसका लिबास तार तार और जिस्म पर छोटे बड़े जख्मों के लातादाद निशान नजर आ रहे थे जो इस बात का सबूत थे कि मरने से पहले उस पर खासा तशद्दुद किया गया। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले और मैं ये सोचे बगैर न रह सकी कि हसीना की अज़ियतनाक मौत की जिम्मेदार मैं और सिर्फ मैं थी। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। रुखसारों पर आंसुओं की धार बह रही थी और दिमाग में तेज सनसनाहट सी महसूस होने लगी। सर पर जिस जगह ज़रब लगाकर मुझे बेहोश किया गया था वहाँ दर्द की बड़ी शदीद टीसें उठ रही थीं। यूँ महसूस हो रहा था जैसे सर पर भारी ज़रबें लगाई जा रही हों। और फिर अचानक मेरे दिमाग में रोशनी का कूंदा सा लपका और उसके साथ ही मैं अपने माजी की तरफ लौटने लगी। मेरी खोई हुई याददाश्त लौट रही थी और बीते हुए वाक़यात तारीकी से उभर कर सामने आने लगे। ख्यालात और यादों के हजूम से मेरा दिमाग दुखने लगा और मैं बार बार सर को झटकने लगती ताकि जहन का ये बोझ किसी तरह कम हो सके। और मैंने आंखें बंद कर ली और मेरे माजी की एक एक तस्वीर जहन में वाज़ेह होते चली गई। मैं 18 साल की थी जब मेरे वालिदैन का ट्रैफिक के एक हादसे में इंतकाल हो गया। हमारी माली हालत इतनी बेहतर नहीं थी और ना ही हमारा कोई रिश्तेदार इस काबिल था कि मेरा बोझ उठा सकता। इस मौके पर वालिद के एक दोस्त आरफ नदीम ने मुझे सहारा दिया और नदीम का कारोबार क्या था उसके बारे में मैं कभी ना जान सकी, लेकिन घर में दौलत की रेल पेल थी। 6 माह बाद जब उसने मुझे शादी की पेशकश की तो मैं इनकार ना कर सकी, अगर चाहे वो उम्र में मुझसे तकरीबन 20 साल बड़ा था।
لیکن اپنی عمر کے اس مرحلے میں بڑی شدت سے ایک ایسے شخص کی ضرورت محسوس کر رہی تھی جو صحیح معنوں میں میرا محافظ بن سکے، اور عارف ندیم نے اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے اور مجھے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ دولت، اپنی پسند کی بڑھیا ملبوسات اور زیورات اور ہر چیز کی فراوانی، لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ اور پھر ایک روز عارف ندیم کو دل کا ایسا شدید دورہ پڑا کہ وہ جانبر نہ ہو سکا، اور ندیم کے انتقال کے بعد اس کی ساری جائیداد اور دولت میرے نام منتقل ہو گئی۔ میرے وہ رشتہ دار جو میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد مجھ سے کنی کترانے لگے تھے، شہد کی مکھیوں کی طرح میرے گرد جمع ہونے لگے، اور ہر کوئی مجھے نوچنے کھسوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند ایک نے مجھے دوسری شادی کا مشورہ بھی دیا، اور میرے رشتہ داروں میں 1-2 آدمی ایسے بھی تھے جنہوں نے مجھے سہارا دینے کی پیشکش بھی کی، لیکن میں خوب جانتی تھی کہ انہیں مجھ سے نہیں، میری دولت سے ہمدردی ہے۔ میں تقریباً 1 سال تک ان لوگوں کو برداشت کرتی رہی، اور پھر سیاحت کی نیت سے نکل کر کھڑی ہوئی۔ خیال تھا کہ کچھ عرصہ آوارہ گردی سے دل بہل جائے گا، اور میری پہلی منزل سیلون تھی۔ پھر نیپال سے ہوتی ہوئی برما پہنچی تو عارف کے ایک پرانے دوست رام داس ملہوترا سے ملاقات ہو گئی۔ کیا میں پاکستان سے قبل ملہوترا کراچی میں ہی مقیم تھا اور پھر بھارت چلا گیا۔ عارف سے میری شادی کو 1 سال ہوا تھا، اور انہی دنوں ملہوترا بھی کسی کاروباری سلسلے میں کراچی آیا، اور دونوں بچھڑے ہوئے دوست بڑی گرمجوشی سے ملے۔ ملہوترا نے بتایا کہ اس کا شمار ہندوستان کے عمرہ میں ہوتا ہے اور اس کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس نے یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ کاروبار کیا تھا۔ برما میں ملاقات کے دوران جب میں نے اسے اپنے شوہر کے انتقال کا بتایا تو اس نے گہرے رنج کا اظہار کیا، اور پھر باتوں ہی باتوں میں مجھے اس کاروبار کا پتہ چل گیا۔ وہ جواہرات کا بہت بڑا اسمگلر تھا، اور اس کا گروہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اعتماد میں لینے کے لیے اس نے بتایا کہ تقریباً 1 کروڑ روپے کی مالیت کے ہیرے برما سے ہندوستان اسمگل کرنا چاہتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی نظروں میں آنے کی وجہ سے وہ کام یہ خود نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی اور آدمی پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ اس نے پیشکش کی کہ اگر اس کے ہیرے بمبئی پہنچا دوں تو مجھے معقول معاوضہ دیا جائے گا، اور میرے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر ہر پہلو پر سوچنے کے بعد حامی پڑھ لی، اور یہ کام اگرچہ خطرناک تھا، لیکن میں اس کام کو کسی معاوضے کی لالچ میں نہیں بلکہ ایک دلچسپ ایڈوانچر سمجھ کر انجام دینا چاہتی تھی۔ یہ طے پایا کہ برما کے سرحد چھوڑنے سے پہلے اس کا ایک آدمی مجھے ہیرے پہنچا دے گا، اور میں ایک مقررہ تاریخ پر وہ ہیرے بمبئی میں رام داس ملہوترا کے حوالے کر دوں گی۔ میں برما سے روانہ ہو کر سنگم سے ہوتی ہوئی انڈیا پہنچ گئی، لیکن ملہوترا کے کسی آدمی نے مجھے ہیرے نہیں دیے، اور میں بمبئی میں 2 دن رہی اور اپنے طور پر مختلف تفریحات سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ میں نے ملہوترا کے بتائے ہوئے پتے پر بمبئی میں اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں اسے مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے برما میں میرے ساتھ جو پروگرام بنایا تھا اسے شاید عین وقت پر منسوخ کر دیا، اور ہیرے میری بجائے کسی اور کے ذریعے بھیج دیے۔ اب اسے رابطہ قائم کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں مختلف علاقوں کی سیاحت کرتی ہوئی جیب پر پہنچ گئی، اور خیال تھا کہ کھوکھر اپار کے راستے پاکستان پہنچ کر کچھ عرصہ آرام کروں گی اور پھر یورپ کی سیاحت کو نکل جاؤں گی۔ لیکن ٹرین میں وہ حادثہ پیش آ گیا جس نے مجھے یادداشت سے محروم کر دیا۔ اب ملہوترا کا کہنا تھا کہ ہیرے مجھے دے دیے گئے تھے، اور راز فاش ہو جانے کی وجہ سے مجھ پر حملے بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ کوئی دوسری پارٹی مجھ سے وہ ہیرا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ لیکن مجھے حیرت تھی کہ میرے پاس ہیرے کہاں آ گئے، جبکہ برما سے روانہ ہوتے وقت ملہوترا کے کسی آدمی نے مجھ سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ میں برما میں قیام کے دوران اپنی نقل و حرکت کا جائزہ لینے لگی، اور ایک ایک تفصیل میرے ذہن میں واضح ہوتی رہی، اور پھر دفتن ہی میرے ذہن میں ایک روشنی کا ایک جھماکہ ہوا۔ برما کی سرحدی قصبے سے سنگم کے لیے روانہ ہونے کے لیے مجھے بس تبدیل کرنا تھی، اور بس مجھے کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ ملی، اور مختلف خوانچے والے مسافروں کے ہاتھ اپنی چیزیں فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک خوانچے والا میری کھڑکی کے پاس کھڑا مجھے مختلف چیزیں دکھا رہا تھا، جن میں ہاتھی دانت کے زیورات اور اسی قسم کی چیزیں شامل تھیں، اور میں نے ہاتھی دانت کا ایک ہار پسند کر لیا۔ وہ شیشے کے ٹکڑوں کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا گلدان بھی میرے سر تھوپنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تقریباً 4 انچ لمبا اور 2 انچ قطر کا گلدان میرے ہاتھ میں تھا، اور خوانچے والا اس کی سنائی میں کسیدہ گو تھا۔ اس دوران بس چل پڑی، اور میں نے گلدان خوانچہ والے کو دینے کی کوشش کی، لیکن وہ خوانچہ سنبھالتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، اور گلدان میرے ہاتھ میں پکڑا رہ گیا۔ بس اڈے سے نکل کر تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی، اور میں نے گلدان پھینکنا چاہا
मगर ये सोचकर अपने इरादे पर अमल ना कर सकी कि सड़क पर गिरकर ये चकनाचूर हो जाएगा और किसी काम का ना रहेगा। मैं चंद लम्बे शीशे के मुख्तलिफ टुकड़ों से बने हुए उस खूबसूरत गुलदान को देखती रही और फिर उसे बैग में रख लिया। और वही गुलदान गुज़श्ता रोज़ मैंने हसीना को दे दिया था और हसीना की लाश मेरे सामने पड़ी थी। अब मुझे यकीन हो चला था कि नन्हा सा वो गुलदान ही दरअसल वो जवाहरात थे जिन्हें मल्होत्रा बर्मा से इंडिया स्मगल करना चाहता था, और हीरो को उस खूबसूरती से गुलदान की शक्ल दी गई थी कि कोई शुबा तक ना कर सके। लेकिन जिसके कब्ज़े में गुलदान था वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गई और मेरे दिमाग में आंधियाँ सी चलने लगी। क्या वो गुलदान हासिल कर चुके हैं या उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा? मुझे अभी तक ये भी मालूम नहीं हो सका था कि हसीना की मौत के ज़िम्मेदार कौन थे और मैं किन लोगों की कैद में थी, मल्होत्रा के आदमी या किसी दूसरे गिरोह के। बहुत देर की सोच विचार के बाद भी मेरा ज़हन किसी नतीजे पर न पहुंच सका और मैंने सर झटक कर दीवार से टेक लगा ली। चिराग में जलने वाला सयाल ख़त्म हो रहा था क्योंकि रोशनी कम हो गई थी और मेरी कलाई में पड़ी हुई हथकड़ी काफ़ी तकलीफदा साबित हो रही थी। मैं इस हाथ को कम से कम हरकत देने की कोशिश कर रही थी ताकि ज़्यादा तकलीफ ना हो, और सन्नाटा मेरे असाब को बुरी तरह मुतासर कर रहा था। लेकिन फिर दफतनी बाहर किसी जगह धमक की इस बात सुनाई देने लगी और वो कदमों की आवाज़ थी जो लम्हा बे लम्हा करीब आती जा रही थी, और बिल आकर वो दरवाजे के सामने पहुंचकर ये आवाज़ रुक गई। उसके साथ ही किसी टार्च की तेज़ रोशनी से मेरे चेहरे पर पड़ी और मेरी आंखें चुंदा गईं और मैंने जल्दी से रुख बदल लिया। बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी और मस्जिद के गेस्ट हाउस को भूल जाओ और अब ज़रा मेरे इस गेस्ट हाउस में भी रहकर देख लो। और दरवाजे की तरफ से उभरने वाली ये गुर्राहट अमीज़ आवाज़ मल्होत्रा के अलावा किसी और की नहीं हो सकती थी। मैंने जल्दी से उसकी तरफ देखा और दरवाजे में 3 आदमी खड़े थे, एक मल्होत्रा और दूसरा देव कामत उसका मुलाजम जिसने तीसरे आदमी को जकड़ रखा था। और उसी लम्हे देव कामत आदमी ने तीसरे आदमी को ज़ोरदार धक्का दिया और लड़खड़ाता हुआ कमरे के वस्त में आ गिरा। वो बहादुर था जिसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह में भी कपड़ा ठुंसा हुआ था, और बहादुर की हालत को देखकर मैं सरतापा लर्ज़ उठी। उसकी पेशानी से बहता हुआ खून इस बात की गवाही दे रहा था कि उसके साथ मारपीट की गई थी। और मैं चंद लम्हे मतवश निगाहों से उसकी तरफ देखती रही और फिर मल्होत्रा की तरफ घूम गई। तो मुझे अगवा करने वाले तुम हो, लेकिन बहादुर को यहाँ क्यों लाया गया? तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द ये है और मेरा ख्याल है कि इससे तुम्हें कुछ दिली लगाव भी पैदा हो गया है। इसे यहाँ लाना मेरे लिए अभी यूँ साबित होगा कि कस्बे में अब तुम्हें तलाश करने वाला कोई नहीं रहा। तुम दोनों की अदम मौजूदगी से यही नतीजा ख़त किया जाएगा कि तुम किसी तयशुदा प्रोग्राम के तहत किसी तरफ फरार हो गए हो। और मल्होत्रा के होंठों पर मैंने खेज मुस्कुराहट थी। लेकिन हसीना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था और उस मासूम को इस बेदर्दी से क्यों हलाक किया गया? मैंने पूछा। मेरा ख्याल था कि उसे हमदर्द पाकर तुमने उसे अपने राज से आगाह कर दिया होगा और यही राज हम उससे उगलवाना चाहते थे, मगर वो बड़ी नफीस साबित हुई। तंगू के चंद हाथ भी बर्दाश्त न कर सकी और मल्होत्रा ने ये कहते अपने करीब खड़े हुए लंबे तिरंगे आदमी की तरफ देखा और जिसने बहादुर को धक्का देकर गिरा था। नहीं, वो कुछ नहीं जानती थी, मैंने जवाब दिया। गोया तुम जानती हो। मल्होत्रा ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं कैसे जानती हूँ? मुझे कुछ याद नहीं। तुम जानते हो कि मैं अपनी याददाश्त से महरूम हो चुकी हूँ। और मैंने चेहरा झुकाते हुए जवाब दिया। मैं उसे बताना नहीं चाहती थी कि मेरी याददाश्त लौट आई है। उसने मुझे घूरा। और मैं तुमसे अलहदगी में बात करूँगा। खाना तैयार हो चुका है और तुम्हें भूख लग रही होगी। हमारी बाकी गुफ्तगू खाने पर होगी, मल्होत्रा ने कहते हुए नंगू को इशारा किया और उसने आगे बढ़कर बहादुर के मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा निकाल दिया, लेकिन हाथ बंधे रहने दिए। और फिर वह मेरी तरफ आया और मेरे हाथ का आहनी कड़ा खोल दिया और मैं दूसरे हाथ से कलाई मसलने लगी। तुम्हें यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी रामदास। तुम्हें शायद इल्म नहीं कि आलिया के बारे में पाकिस्तानी सफारत खाने को इतला दी जा चुकी है और मेरी हैसियत भी हुकूमत पाकिस्तान के एक नुमाइंदे की है। इस मामले को सिफारती सतह पर उठाया जाएगा और तुम किसी तरह बच ना सकोगे। मेरे बचने या ना बचने का सवाल तो उस वक्त पैदा होगा जब मुझ पर बात आएगी, जबकि किसी को इल्म ना होने पाएगा कि तुम लोगों को अगवा करने वाला मैं हूँ। और मल्होत्रा ने मैंने खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या मतलब? क्या तुम ज़िंदगी भर के लिए हमें अपना कैदी बनाकर रखना चाहते हो? मैंने उसे घूरा। मैं ये रोग नहीं पालूंगा, लेकिन तुम लोगों को इस तरह गायब कर दिया जाएगा कि दुनिया में तुम्हारा नाम तक ना रहेगा। क्या मतलब? क्या तुम हमें कत्ल कर दोगे? और मैं सहम गई। हाँ, और तुम लोगों की हड्डियां भी इस गार में गल सड़ जाएंगी। मल्होत्रा ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसने बाहर निकलने का इशारा किया।
मैंने एक नज़र बदकिस्मत हसीना की लाश और ज़मीन पर बंधे बहादुर की तरफ देखा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मल्होत्रा आगे था और उसके पीछे मैं और मेरे साथ तंगू, जिसने मेरे बाजू पर गिरफ्त जमा रखी थी। हम मुख्तलिफ सुरंगों में चकराते हुए जैसे ही दहाने से बाहर निकले और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जंगल में मंगल का समा था और चारों तरफ से चट्टानों में घिरे हुए एक छोटे से मैदान में आलीशान खैमे और शामियाने नस्ब थे और दो मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोल बक्स जल रहे थे। एक तरफ मल्होत्रा का एक मुलाजिम खाना तैयार करने में मसरूफ़ था और मल्होत्रा मुझे लेकर एक मेज़ के करीब पहुंच गया, जिसके गिर्द कुर्सियां बिछी हुई थी और हमारे बैठने के चंद मिनट बाद ही मुलाजिम ने मेज़ पर खाना चुन दिया और मल्होत्रा ने खाने की तरफ इशारा किया, मगर मैंने इनकार कर दिया। मेरे साथ तावन करके फ़ायदे में रहोगी। और मल्होत्रा मुझे घूरते हुए बोला, और बसोरते देकर तुम्हारी यहाँ बहादुर की मौत अजियतनाक साबित होगी। मेरा ये मुलाजिम टिंगू तशद्दुद अजियत के 20 तरीके जानता है, तो क्या तुम वाकई हमें कत्ल कर दोगे? और मैंने मतवश निगाहों से उसकी तरफ देखा। अपने आप को अहमक साबित करने की कोशिश ना करवा लिया। तुम हसीना के कत्ल की आनी शाहद हो और तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। और रामदास मल्होत्रा ने मुझे घूरा। लेकिन क्यों? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और मैं हकला कर रह गई। तुम्हारी आफियत इसी में है कि मुझसे तावन करो और ये बात ज़हन नशीन कर लो कि यहाँ ना तो कोई तुम्हारी मदद को आएगा और ना ही तुम यहाँ से फरार हो सकती हो। और अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं सच उगलवाना भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मल्होत्रा ने मेरे चेहरे पर नज़रें जमा दी। ऐन उसी लम्हे खैमे के दूसरी तरफ कोई पत्थर लड़कने की आवाज़ सुनाई दी और हम दोनों चौंक कर उस तरफ देखने लगे। मल्होत्रा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उलझन के असर पैदा हुए और फिर तासरात बदल गए। वो टार्च उठाकर उस रोशनी में चारों तरफ देखने लगा और उस वक़्त मुझे भी पहली मर्तबा गौर से उस जगह को देखने का मौका मिला। ये चट्टानों में किसी मंदिर के खंडरात थे और हमारे कैंप के चारों तरफ ऊंची शिकस्ता दीवारें थीं और कहीं कहीं कोई सतून भी नज़र आ रहा था। शायद कोई जानवर था। और मल्होत्रा सीधा होकर बैठ गया। मैं तुमसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम ठीक ठीक जवाब दोगे। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मैं कुछ नहीं जानती। और मेरी निगाहें अभी तक अंधेरे में उसी सिमत मुर्तकिज़ थीं जहाँ से पत्थर लड़कने की आवाज़ सुनाई दी थी। और फिर सिर्फ एक ही लम्हे के लिए मैंने दो चट्टानों के दरमियान एक ह्योले को मलक देखा, मगर दूसरे लम्हे मल्होत्रा की आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। और तो फिर मुझे दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। मल्होत्रा ने कहते हुए जेब से टीन की एक छोटी सी डिबिया निकाली, जिसमें एक सिरिंज और एक छोटी सी शीशी में सयाल भरा हुआ था। ये ट्रोथ सिप्रिम है और इसकी खासियत यह है कि हर एक को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले मैं वैसे ही तुम पर सवालात करूँगा और उसके बाद ये इंजेक्शन लगाकर वही सवाल दोहराए जाएंगे। अगर किसी बात में तसाद पाया गया तो फिर तुम्हें टिंगू के हवाले कर दिया जाएगा और ये जान लो कि टिंगू तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर देगा। तुम समझते क्यों नहीं? मैं तकरीबन चीख उठी। और जब मैं कुछ जानती नहीं तो दवाओं के इस्तेमाल या तशद्दुद का भी कोई फ़ायदा ना होगा। और मैं खामोश होकर उसके चेहरे को तकने लगी, जहाँ दरिंदगी और बर्बरियत के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और मेरी आंखों के सामने हसीना की लाश घूम गई, जो उनकी बर्बरियत का वाज़ेह सबूत थी। लेकिन मैंने तय कर लिया कि खवा कुछ भी हो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें शायद इल्म नहीं। और मैंने उसके चेहरे से नज़रें हटाते हुए दोबारा कहा, बहादुर कैप्टन गोपाल से मिलकर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका है और वो यकीन मुझे तलाश करता हुआ उस तरफ आएगा। और ये बात भी मेरे जहन में है। मल्होत्रा मुस्कुराते हुए बोला, और ये भी तो हो सकता है कि कैप्टन गोपाल सिंह को इतला देने के बाद बहादुर की नीयत बदल गई हो और वो तुम्हें लेकर फरार हो गया हो। ये कहा जा सकता है कि बहादुर ने यह प्रोग्राम बड़ी इजलत में बनाया था, क्योंकि उसकी जेब में पानी की एक बोतल के अलावा कुछ नहीं था। जेब में पेट्रोल भी ज़्यादा नहीं और किसी खातर ख्वाह इंतजाम के बगैर रेगिस्तान में निकलना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। और तुम लोग भी रेगिस्तान में रास्ता भटक गए और जीप का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तुम लोग तपते हुए रेगिस्तानी में गर्मी और प्यास से ख़त्म हो गए और दोनों की लाशें जीप में मिलेगी और तुम्हारी मोहब्बत की कहानी पर हर कोई यकीन कर लेगा। मैं सरतापा लर्ज उठी और उसके शैतानी जहन ने बड़े भयानक मंसूबे बना रखे थे। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कुछ जानती हूँ तो, और मैंने रुक रुक कर मुर्तश लहजे में कहा, तो मुझे हर बात वो बताओगी जो मैं पूछना चाहता हूँ। और मल्होत्रा की आंखें चमक उठीं। और मैं ये बात बता देना भी ज़रूरी समझता हूँ कि टिंगू को भी मायूस नहीं करना चाहता। और उसने खामोश होकर देव कामत टिंगू को इशारा किया। उसके इस जुमले से मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई
اور وہ مجھے کسی حالت میں بھی بخشنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کے اعتراف کے بعد میں کچھ جانتی ہوں، میں نے اپنے مقدر پر خود ہی بدقسمتی کی مہر لگا دی، اور وہ سچ اگلوانے کے لیے میرے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دے گا۔ دیو کامر ٹنگو نے چمڑے کے فیتے سے میری دونوں کلائیاں اس قدر مضبوطی سے باندھ دی کہ چمڑے کا فیتا مجھے گوشت میں اترتے ہوئے محسوس ہونے لگا۔ پھر اس نے میرا سر پکڑ کر گردن کو ایک طرف موڑا، اور گردن موڑنے کے ساتھ ساتھ مجھے گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے زوردار جھٹکا دے کر گردن چھوڑ دی، اور میرے منہ سے بے اختیار کربناک چیخ نکل گئی، اور میں زور زور سے سر جھٹکنے لگی۔ میں تمہیں ایک موقع اور دے رہا ہوں۔ اور ملہوترا کی آواز سنائی دی، ہیرے کہاں ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، اور میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ ملہوترا نے ٹنگو کو اشارہ کر دیا، اور عین اسی لمحے کسی طرف سے دب کی آواز سنائی دی، اور ملہوترا کے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے 22 بور کا ریوالور نکال لیا، اور اس نے ٹارچ اٹھا کر دوسرے ملازم ارجن کو اشارہ کیا، اور دونوں آواز کی سمت دوڑ گئے۔ میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ وہ آواز کس قسم کی تھی، اور میں تو خوفزدہ نظروں سے ٹنگو کو دیکھ رہی تھی جو میرے اوپر جھک رہا تھا، اور اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ کی آہنی گرفت میں لے لیا، اور دوسرے ہاتھ سے زمین پر پڑا ہوا زنبور اٹھا لیا، اور میں دہشت سے کانپ اٹھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ میرے ناخن کھینچنا چاہتا ہے۔ عین اسی لمحے دب کی آواز ایک اور آواز سنائی دی، اور کسی نے جلتا ہوا پیٹر مکس اٹھا کر خیمے کی طرف اچھال دیا، اور ٹنگو مجھے چھوڑ کر اس طرف بھاگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور میرا ذہن معاف ہوا جا رہا تھا کہ پشت کی سمت سے ایک سرگوشی سنائی دی، عالیہ کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ اور آواز بلا شبہ بہادر کی تھی۔ میں اٹھ کر آواز کی سمت دوڑی، اگرچہ خیمے کو آگ لگ چکی تھی، لیکن اس طرف تاریکی تھی، اور میں جیسے ایک ستون کے قریب پہنچی، کسی نے میرا بازو پکڑ لیا، اور مجھے کھینچتا ہوا چٹان کے ایک اور غار میں داخل ہو گیا۔ وہ بہادر تھا، اور ہم اندھوں کی طرح غار میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے بالآخر ایک کھلی جگہ نکل آئے، اور یہ بھی شکستہ مندر کا ایک حصہ ہی تھا۔ ہمارے سامنے پتھروں کی کشادہ سیڑھیاں تھیں، اور آسمان پر چمکنے والے چاند کی روشنی میں ایک جگہ جیپ کھڑی نظر آ رہی تھی، اور میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، اور اپنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے میں ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ہم ابھی خطرے سے باہر نہیں نکلے، اور وہ نیچے میری جیپ کھڑی ہے۔ اگر ملہوترا ہم سے پہلے جیپ تک پہنچ گیا تو ہمارے فرار کی تمام راہیں مسدود ہوں گی۔ بہادر یہ کہتا مجھے اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا، اور ایک جگہ ہم ایک دیوار کی آڑ میں رک گئے، اور وہ شیشے کے ایک ٹکڑے سے میری کلائیوں پر بندھا ہوا چمڑے کا فیتا کاٹنے لگا، اور یہ حسینہ کی ٹوٹی ہوئی اینک کا شیشہ تھا۔ اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ غار کے اندر بہادر نے اپنے آپ کو کس طرح کھولا ہوگا۔ چند لمحوں بعد ہم دیوار کی آڑ سے نکل کر پھر نیچے اترنے لگے، اور سیڑھیاں ختم ہو گئیں۔ آخری سیڑھی سے زمین کا فاصلہ تقریباً 8 فٹ تھا، اور وہاں سے 15-16 فٹ کے فاصلے پر جیپ کھڑی تھی۔ بہادر سیڑھی سے نیچے کود گیا، اور سرگوشی میں مجھے نیچے کودنے کو کہا، اور میں چھلانگ لگانے کی بجائے سیڑھی کا کنارہ پکڑ کر لٹک گئی، اور اس سے پہلے کہ میں ہاتھ چھوڑتی، فضا میں دھماکے کی آواز سے گونج اٹھی۔ دائیں طرف بلندی سے اترنے والی گولی میرے بالکل قریب پتھر پر لگی، اور پتھر کا ایک ٹکڑا میرے رخسار پر لگا، اور اسی وقت میں نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ بہادر مجھے گھسیٹتا ہوا دیوار کے ساتھ چپک گیا، اور دائیں طرف بلندی پر کھڑا ہوا رام داس ملہوترا صاف نظر آ رہا تھا، اور اس کے ساتھی مختلف سمتوں پر کھڑے فائرنگ کر رہے تھے۔ بہادر نے چند لمحے صورتحال کا جائزہ لیا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا، اور اب وہ لوگ جیپ پر فائرنگ کر رہے تھے، اور گولی چل لگنے سے جیپ کے ونڈ شیلڈ میں ایک جگہ سوراخ ہو گیا، اور مکڑی کے جالے کی طرح پورے شیشے میں دراڑیں پڑ گئیں۔ بہادر چند لمحے دیوار کے ساتھ کھڑا رہا، اور پھر میرا ہاتھ تھام کر تیزی سے جیپ کی طرف دوڑا۔ مجھے اس نے اٹھا کر پچھلے حصے میں فرش پر پھینکا، اور خود اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ 2 مرتبہ گھرانے کے بعد تیسری مرتبہ انجن اسٹارٹ ہو گیا، اور اسی لمحے گولی ہڈی کو چیرتے ہوئی میرے گھٹنے کے قریب فرش میں پیوست ہو گئی، اور پھر جیپ کو ایک زبردست جھٹکا لگا، اور وہ پوری رفتار سے دوڑنے لگی۔ میرے جسم کا ہر حصہ بری طرح دکھ رہا تھا، اور سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ میں بے حس و حرکت جیپ کی فرش پر لیٹی رہی، اور فائرنگ کی آوازیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں، اور جیپ تیز رفتاری سے ریگزار میں اچھلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ عالیہ، اب ہم خطرے سے باہر ہیں، بہادر نے پیچھے بڑے بغیر کہا۔ اور ہم کس طرف جا رہے ہیں بہادر؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں، اس وقت تو میں ان لوگوں سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا ہوں، اور رات کے وقت سمت کا تعین مشکل ہے۔
ऐसे चंद राट यहाँ से तकरीबन 60 मील के फासले पर है और मेरा ख्याल है कि हम सुबह होने पर ही रास्ते का तयन कर सकेंगे और इस वक्त हम किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाएंगे, बहादुर ने जवाब दिया। तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद जीप का इंजन खर खर करने लगा और उसके साथ ही रफ्तार कम होती चली गई और बहादुर गियर बदल कर इंजन को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब ना हो सका और बिल आकर जीप रुक गई। बहादुर इंजन चेक करने के लिए नीचे उतरा तो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और मैं जल्दी से नीचे कूद गई। बहादुर को उठाने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा और बुरी तरह चौंक गई। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था और मैंने उसकी पेशानी पर हाथ फेरा तो मेरा हाथ चिपचिपाने लगा और उस वक्त मुझे ख्याल आया कि जब बहादुर को लाया गया था तो उसकी पेशानी जख्मी थी और शायद इसी वजह से उसे बुखार आ गया था। बुखार भी इस कदर शदीद कि अगर फौरी तौर पर किसी किस्म की तबी इमदाद न पहुंचाई जाती तो उसकी हालत बिगड़ने का खदशा था। मुझे तो हैरत थी कि वह अब तक अपने आप पर काबू कैसे पाए हुए था और मैंने उसे बेमुश्किल उठाकर जीप की पिछली सीट पर डाल दिया। वो उठकर जीप का इंजन चेक करना चाहता था, लेकिन अब शायद उसकी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। जीप में पानी की एक बोतल मिल गई और मैंने अपनी कमीज का दामन फाड़कर कपड़ा भिगो कर उसकी पेशानी पर रखने लगी और उस वक्त उसके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकती थी। रात बीती जा रही थी और बहादुर पर गनोदगी तारी थी और मैं इस ख्याल से ही सही सहमी जा रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो आबादी से मीलों दूर इस सहरा में मेरी ज़िंदगी का भी खात्मा हो जाएगा और अगर रामदास मल्होत्रा और उसके वैशी साथियों के हाथ आने से भी बच गए तो दिन में अंगारों की तरह तपती हुई रेत मुझे मौत की नींद सुला देगी। रात के आखिरी पहर बहादुर का कुछ होश आया, लेकिन वह अपनी जगह से उठने में कामयाब न हो सका और मैंने उसे लेटे रहने का मशवरा दिया और उसका ध्यान बिठाने के लिए उससे बातें करने लगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आलिया, और उसने मेरे चेहरे को देखते हुए कहा, मल्होत्रा तुमसे क्या चाहता है और मैंने तुम्हें अगवा क्यों किया था? और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हसीना की मौत और मेरा अगवा तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिर क्यों? बहादुर इसकी क्यों के पीछे बहुत से सवालात पोशीदा हैं और मैं फौरी तौर पर जवाब देने के बजाय सोचने लगी कि मेरी वजह से 2 कत्ल हो चुके हैं और बहादुर भी मेरी ही वजह से इस मुसीबत में फंसा था। अगर वो मुझे लेकर भाग निकलने में कामयाब ना हो पाता तो यकीनन उसे भी कत्ल कर दिया जाता। मौजूदा हालात में उसकी और मेरी ज़िंदगी की अब कोई भी ज़मानत नहीं दी जा सकती। अगर हमें मल्होत्रा तलाश करता हुआ उस तरफ आ गया तो हम चूहों की तरह मारे जाएंगे और वह मसला थे और हम नहते और हमारी तरफ से किसी किस्म का दिफा मुमकिन नहीं। और मैंने फैसला कर लिया कि ज़िंदगी के स्नादक मोड़ पर बहादुर को तमाम वाक़यात से आगाह कर दिया जाएगा। और बिल आखिर चंद लम्हों बाद मैंने मध्यम लहजे में उसे तफसीलात से आगाह करने लगी और उसकी खून रेजी का पस मंज़र समझाने लगी। अब वो हीरे कहाँ हैं? और मेरे खामोश होने पर बहादुर ने चौंक कर पूछा। वो गुलदान मैंने एक बेकार सी चीज़ समझकर हसीना को दे दिया था। कुछ नहीं कहा जा सकता कि हसीना की मौत के बाद अब वो 1 करोड़ रुपए की मालियत का गुलदान कहाँ होगा? और मैंने मध्यम लहजे में जवाब दिया, वो गुलदान यकीनन हसीना के सामान में मौजूद होगा और उसका सामान अस्पताल ही के स्टोर रूम में पड़ा रहता है। मुझे यकीन है कि अभी तक किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी और हमें जल्द से जल्द चंद्रपाड़ पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। और बहादुर कहता हुआ एक बार फिर उठने की कोशिश करने लगा।